معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا ہے۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ آپ کا نام؟ محمد فرحان اتاری، ایاز علی، امیر حسین اتاری، محمد فضل الرحمان اتاری، محمد عارف اتاری۔ میرا نام محمد حمزہ ہے، کہاں سے آئے آپ؟ ملک کھوگرا پار سے، شہداد پور ڈسٹرکٹ سانگڑ، ایسی اگرتا کرنگی سے۔ فیصلہ آباد پنجاب سے آیا ہوں۔ مجھے کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ معلوم نہیں تھی دین کے بارے میں، تو یہاں پہ میں آیا ہوں تو مجھے کچھ باتیں معلوم ہونے لگے، یہاں تک کہ نماز کے بارے میں بھی معلوم ہو چکے۔ روزوں کے بارے سے امیر اسلام نے بتایا کہ الحمدللہ 3 دن کے روزے رکھے ہیں ہر مہینے۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھا، 12 دینی کام سیکھے ہم نے، 12 دن کاموں کو کیسے اپنانا ہے، اپنے علاقوں میں جا کے کیسے کرنا ہے 12 دینی کام جو پیر صاحب نے ہمیں عطا فرمائے، سنتے سیکھنے کو ملے، آداب کیسے، قرآن پاک کا تعظیم کیسے کرنی، استادوں کی تعظیم کیسے کرنی، اور بہت کچھ حاصل ہوا۔ آج سے گفتگو نماز کے حوالے سے اہم ہوگی کہ جو نمازوں کے بہانے کرتے ہیں، ہیلا بناتے ہیں اور کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، تو امیر سنت نے آج اس پہ بڑی توجہ دلائی ہے۔ پیر صاحب جب نظر کرم فرماتے ہیں نا تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ رجب کے 6 مدنی مذاکروں میں شرکت ہوئی ہے الحمدللہ، اور پیر صاحب نے نوازا بھی ہے، پیر صاحب کے ساتھ سحر کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ جب سے میں دعوت اسلامی کے ماحول پہ آیا تو ماشاءاللہ مجھے نماز کی پابندی لگی اور سنت برا بیان سننے کا پابند ہو گیا ہوں، اور مجھے اچھا بھی لگنے لگا، پہلے ان چیزوں سے میں کافی دور تھا۔ آج پہلی بار فیضان مدینہ کو ہم نے اتنا قریب سے دیکھا، دعوت اسلامی کو۔ آج جب ہم آئی ٹی ڈپارٹمنٹ گئے، علمیہ جو انہوں نے نام شعبے بتائے، تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ کئی زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں قرآن پاک کے بھی، تو بڑی خوشی ہوئی۔ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن جب سے میں دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں مجھے بہت سا نالج دین کا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ یونیورسٹی میں تو ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن ادھر آ کے میں نے اصل دین دیکھا ہے۔ میں ادھر پیر صاحب کے پاس پہلی دفعہ میرا ادھر آیا ہوں، اور ادھر آ کے کیا روٹ ملا ہے، اور میں مرید بھی ہوں ماشاءاللہ۔ کافی دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ مطلب مجھے فیضان مدینہ دیکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر مدنی چینل وغیرہ چلتا رہتا ہے، اور ماشاءاللہ سے امیر سنت سے محبت شروع سے ہی مطلب میری رہی ہے۔ پھر میں نے گھر میں مطلب اپنے ذہن یہی بنایا اسی طریقے کا، تو ماشاءاللہ سے اب بچوں کے ذہن میں بھی یہ مرشد کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، دل میں نیت حاضر ہو زبان سے بھی دہرا لے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو، نہیں کی تھی اور کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب کر لیجئے، اور اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں۔ تاہم یہ ذہن میں رہے کہ مناسب طریقہ یہی ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، چاہے تو تلاوت کر لیں، اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو نفل ہوگا تو نفل پڑھ لیں، یا اس وقت کی نماز پڑھ دی اور اللہ کی رضا کے لیے نیت ہو
इंशाअल्लाह फिर एहतिकाफ का सवाब भी मिलेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रिसाला ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 6 से आज की रजब शरीफ 1444 हिजरी की 20वीं रात की मुनासबत से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 20 20, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लू सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी से गुजारिश है कि एक शेर है, जब भी पढ़ता हूँ तो एक ख्वाहिश होती है कि इस शेर के जो पीछे के हालात थे वो अपने पीर मुर्शिद की ज़बानी सुनूं कि वो क्या हालात थे। शेर कुछ यूँ है कि मेरे सब अजीज छूटे सभी यार बीत रूठे कहीं तुम न रूठ जाना मदनी मदीने वाले। तो हुजूर ये जो शेर आपने इरशाद फरमाया था तो इसके पीछे वो कौन से हालात थे जो आपने इस तरह का मिसरा लिखा, हमें भी बताया ताकि हमें भी सीखने को मिले। ये अपने वसाइल बख्शिश में यूं उसको किया हुआ है, मेरे सब अजीज छूटे सब मेरे दोस्त भी गो रूठे शाह तुम न रूठ जाना मदनी मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह चाहे मेरे सारे अजीज रिश्तेदार मुझे छोड़ दें, मुझसे किनारा कश हो जाए, मुझसे अलग हो जाए, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब मेरे से रूठ जाए, नाराज हो जाए, मुंह फेर लें, शाह तुम न रूठ जाना। या रसूल अल्लाह सारी कायनात सारी दुनिया के मखलूक भले मुझसे नाराज हो जाए या रूठ जाए, मुझे छोड़ दे, मुझे धुतकार दे, ठुकरा दे, मगर आका आप मुझसे नाराज ना होना, आप राजी तो सब राजी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे सब अजीज छूटे मेरे दोस्त भी गो रूठे मेरे सब अजीज छूटे मेरे दोस्त भी गो रूठे शाह तुम न रूठ जाना शाह तुम न रूठ जाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले। या मुर्शिदी मेरा सवाल ये है कि ज़लज़ले को अल्लाह पाक का अजाब कहना कैसा, और ज़लज़ले में अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो क्या वो शहीद है? रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। ज़लज़ला आता तो है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया कि गुनाहों की वजह से आता है, इसका मेन सबब, और असल सबब तो अल्लाह पाक की मर्जी है, वो गुनाहों की वजह से वो आता है। तो अब ये कि ज़लज़ले को मुतलकन हर एक के हक में अजाब तो नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके हक में ये अजाब करार पाएगा, गुनाहों की सजा उसकी करार पाएगा, गुनाहों का कफारा बनने का सबब वो करार पाएगा। अच्छा, बाज़ों के लिए तरक्की दर्जात का सबब बनेगा। तो हर एक क़यामत के दिन अपनी अपनी नीयत पर उठेगा। इसलिए हम किसी शख्स से मुअय्यन ने किसी फिक्स आदमी के लिए नहीं कहेंगे कि ये अजाब में मुब्तला हो गया, अल्लाह के ज़लज़ला ने इसको मार दिया। ये ज़हन में रखिएगा, हर एक अपनी अपनी नीयत पर उठेगा।
अच्छा, और रहा ये कि जलजले में शहादत, तो इसमें कि किसी पर दीवार गिर जाए, छत गिर जाए और वो इसमें दबकर मुसलमान फौत हो जाए तो वो शहीद होता है। अच्छा, मुतलकन जलजले का हर इंतकाल करने वाला आया शहीद है या नहीं, ये मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, मुफ्ती साहब इरशाद फरमा दें। बस वही जो बाहर शरीयत में आपने जो इरशाद फरमाया उसी के मुताबिक है कि जिसके ऊपर दीवार वगैरह गिरी, और आम तौर पे ज़लज़ले में इंतकाल करने वालों की कैफियत यही होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरी शॉप पे ऑफिस में मदनी अतियात बॉक्स के इस्लामी भाई तशरीफ लाए, तो उससे पहले बॉक्स से 1500-2000 माहाना निकल रहे थे, तो उनके तरगीब दिलाने से अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 313 रुपए मदनी बॉक्स में डाल रहे हैं, और इसके साथ उनकी तरगीब दिलाने से घर में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का इज्तिमा शुरू हुआ, और हफ्तावार इज्तिमा G11 में जो हो रहा है उसमें हम भी जाते हैं। हमारे लिए इस्तकामत की दुआ फरमाएं। और एक अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि हमारी दुकान पे बहुत सारे दुकानदार और दूसरे ग्राहक आते हैं जिनके कुछ रकम भूल जाती है, हिसाब करने में हमारे पैसे इजाफी हो जाते हैं, बाज़ कम भी पड़ जाते हैं। भूल गया वो तो हम दे सकते हैं, जो नहीं पता चला कि ये पैसे कहाँ से है, क्या उस रकम को हम मदनी अतियात बॉक्स में डाल सकते हैं, या जो सामान किसी का भूल जाए उसका हमें पता नहीं होता वो गरीब आदमी को दिया जा सकता है? माशाअल्लाह शाहनवाज भाई, आप 313 रुपये रोजाना मदनी अतियात बॉक्स में डाल रहे हैं और इज्तिमा मदनी मुज़ाकर भी अपने घर में शुरू कर दिया है। मरहबा, अल्लाह पाक आपकी नेकियों को कबूल फरमाए, इज्तिमा में जाना कबूल हो और पाबंदी से अल्लाह करे ये होता रहे, इस्तिकामत मिल जाए, और मदनी काफिलों का सफर भी हर महीने 3 दिन अगर शुरू कर दें तो मेरी दावत कबूल होगी, मुझे इंशाअल्लाह इसका ज्यादा लुत्फ आएगा। अल्लाह बरकत दे आपको। अच्छा, अब ये कि कोई रकम किसी की ज्यादा आ गई गलती से, तो यह है उसी के मालिक वही, आपकी मिल्क नहीं हुई, जो तय हुआ था उससे ज्यादा आ गई, तो ये कि उसको ढूंढना होगा और उसको पहुंचाना होगा। दूसरा है कोई चीज भूल जाए तो वो भी है उसी की, आपकी नहीं है, तो इसको भी मतलब यानी कि मालिक तलाश करना हो। तो ऐसे मौके पर यानी कि आप चाहें कि मदनी अतियात बॉक्स में डाल दें तो ये नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए लिख कर लगाया जा सकता है कि फुला दिन फुला तारीख फुला आइटम किसी ने खरीदी, तो अगर ये सारी याद हो, वरना जो भी जितना याद हो उतना लिख दिया जाए, तो रकम कुछ ज्यादा आ गई है तो निशानी देकर मुतमईन करके आप वसूल कर लें, या कुछ चीज भूल गए तो वो वसूल कर लें आकर। तो इस तरह मतलब यानी कि कोई तरकीब ऐसी की जाए कि जो माल जिसका है उसके हकदार को पहुंच जाए। यानी इसमें ये नहीं कि वो थोड़ी आप बोलोगे अब 2-4 बार ऐलान कर दिया, लिख कर लगा दिया 2-4 दिन, अब ये मेरी हो गई, और अब तो अब भी आप इसको मदनी अतियात बॉक्स में तो नहीं डाल सकेंगे। फिर उसके अपने अब लुकते के जो अहकाम है, अब कोई चीज भूल गया रख कर, वो तो हो सकता है वो लुकते में आए, रकम कोई गलती से आपको ज्यादा दे गया तो वो तो बजाय तो लुकते में भी नहीं आ रही ना। कि मुफ्ती साहब मजीद अगर इरशाद फरमा दें कुछ। हुक्म तो वही होगा जो आपने इरशाद फरमाया कि उसे तलाश करके उस तक पहुंचाना ही होगा, और कोई सूरत नहीं बनती तो बज़ाहिर ये अमानत की सूरत नहीं है। अगर अमानत की सूरत होती फिर तो उसकी हिफाजत करना पड़ती। तो बिल आखिर अगर किसी सूरत वो मिलता नहीं है तो उसे सदका करने का हुक्म होगा कि उसकी तरफ से वो सदका कर दे। और फिर भी अगर वो असल मालिक आ गया तो देना पड़ेगा, ये भी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ,
चाहे पल्ले से देना पड़े देना होगा। और अगर वो सदका बाकी रखे कि ठीक है आपने चलो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया मेरी तरफ से, सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल करे, और वो तकाजा नहीं करे, छोड़ दे, तो फिर ठीक है, तो अब वो मसला हल हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जुमा से ये हमारे मदनी एहतियात बॉक्स के मुल्क भर से तकरीबन 1200 इस्लामी भाई जो है ये 3 दिन के लिए आलमी मदनी मरकज़ में हाजिर हुए हैं, और माशाल्लाह रौनक लगाई भी इन्होंने। 1200 मरतबा मरहबा मरहबा। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मुख्तलिफ सिलसिले थे सीखने सिखाने के, और कुछ फ़र्ज़ उलूम के भी कुछ बयानात और इस तरह का कुछ सिलसिला बना है। इन्होंने एक बड़ा प्यारा अभी जैसे हमने सुना भी कि हमारे एक ज़िम्मेदार ने एक दुकानदार को तरगीब दिलाई, तो उन्होंने 313 मरतबा रुपए जो वो बढ़ा दिए। तो इनका कहना ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यूँ तो हज़ारों लाखों आशिकान रसूल ये बॉक्सेस जो है इससे फ़ायदा देते हैं दावत इस्लामी को, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी तरगीब हो जाए कि जो अगर 50 रुपये डालते हैं तो 100 रुपये कर दें, कोई 100 रुपये डालते हैं तो 200 रुपये कर दें, तो यूँ इंशाअल्लाह करीम हमारे इस जो शोबा है इसको भी एक हिम्मत मिल जाएगी, इनको भी हौसला बढ़ जाएगा और दावत इस्लामी को भी फ़ायदा होगा, ताकि ये जो हमारे मदारिस और जामियात जो चल रहे हैं, जो मज़ीद हमें बढ़ाने भी हैं, तो इसमें मुआवनत हो जाए। तो इनका एक ख्वाहिश थी, मुझे भेजी थी कि अगर आपकी तरफ से कोई सी दुआ मिल जाए तो ये कि इस्लामी भाई इसको तरगीब में शामिल कर लेंगे। और ये दुकानदारों के पास भी जा रहे हैं हमारे बॉक्स खोलने वाले, तो आगे रमज़ान शरीफ भी है और लाखों ताजरों से मिलते भी हैं महीने में, तो अगर आप इनकी भी कोई तरबियत फरमाएं कि ये भी और मज़ीद कोशिश जारी रखें। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। और मदनी बॉक्स रखने के फवाइद में से एक आपने अभी वीडियो क्लिप चलाया भी, देखा भी नाजरीन ने, कि इस बहाने वो बॉक्स लगा हुआ, इस बहाने आदमी डाल देता है कि भाई ये अब है तो अब ये लेने आएंगे, तो खाली खाली दिखा दूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तो देना है, तो इस बहाने बंदा कुछ ना कुछ डालेगा, और ज़ाहिर ये उसकी आखिरत के लिए भी बेहतर ही है। और जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। हर चीज में अब तो महंगाई बढ़ रही है और चंदे में कटौती हो रही है, मुश्किल ये है कि हर चीज का दाम ज्यादा देंगे। रोटी भी 20-25 रुपए की हो गई है तो इन्हें हर चीज का दाम ज्यादा देंगे, भाई महंगी हो गई, गोश्त महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, जी हाँ दाल भी महंगी हो गई है ना, हर चीज तो महंगी खरीदेंगे। और चूंकि ये महंगी हो गई इसलिए चलते में कटौती, यार वो बड़ा मुश्किल हो गया है और यूं हो गया कारोबार और पैसे फंस गए, तो ये अब कटौती कहीं नहीं करनी, ना खाने में करनी है, ना पीने में करनी है, ना पहनने में करनी है। कटौती करनी है तो राह खुदा के अंदर खर्च करने में करनी है। कैसे अब कैसे आदमी हो यार, यानी कि ये यानी जो जन्नत आप खरीद रहे हैं उसमें आप कटौती कर रहे हैं, और जो दुनिया खरीद रहे हैं उसमें आप कोई कटौती करने के लिए तैयार नहीं है, आप दिए जा रहे हैं। तो इसलिए मतलब जन्नत खरीदने में ज्यादा मतलब तवज्जो देनी चाहिए कि ये राय खुदा में देना वो है कि ये उस वक्त काम आएगा जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आपको होगी, यानी ये कब्र में जाकर ये काम आएगा आपको, कि उस वक्त सबसे ज्यादा आपको नेकियों की हाजत पड़ेगी। तो इसलिए जरूर मतलब बढ़ा देना चाहिए। जो जो महंगाई बढ़े ना चीजों की, तो चंदा भी बढ़ा देना चाहिए, फंड भी बढ़ा देना चाहिए कि भाई फुला चीज पर समझे वो 25% दाम बढ़ गया तो आप भी अपने चंदे पर 25% बढ़ा दें, कि अगर 100 रुपए डालते थे तो 125 डाल दें हम। अब अगर 1.5 हो गया, 50% बढ़ गया तो भाई 50% चंदा बढ़ा दें, आप ये करें ना, इसको भी लेके चले ना। कि तो अब ये कि दावत इस्लामी के जो काम है तो उसमें तो अखराजात बढ़ गए ना। जो चीजें मतलब पहले दावत इस्लामी लेती थी वो जिस दाम की भी थी, अब ज़ाहिर है उसको ज्यादा देना पड़ता है, अजीरों को उजरत भी ज्यादा
تنخواہیں زیادہ، ہر چیز میں اخراجات بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے مدنی احتیاط باکس رکھیں بھی اور اس کو خوب بھریں، دل کھول کر بھریں. انشاءاللہ آپ کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھر جائے گا. یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، جو اپنی دکان میں اپنے گھر میں اور مدنی احتیاط باکس رکھے اور اس میں جو کچھ ڈالتا ہے وہ ڈالے، اس میں اضافہ کرے، دوسروں کو اس کی ترغیب دلائے اور اس کے لیے تیار کرے. اور جو بھی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو اسلامی بہنیں بھی اس کے لیے اپنے محارم پر کوششیں کرتی ہیں اور اپنے گھروں میں مدنی احتیاط باکس رکھتی ہیں، رکھواتی ہیں، اے اللہ پاک ان سب کو مرنے سے پہلے پہلے معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھانا. اور جب دنیا سے رخصت کا وقت آئے، اس وقت انہیں معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلمہ پڑھائیں اور اپنے قدموں پر نثار ہونے کا موقع عطا فرمائیں. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی سرکار کا کلمہ پڑھ کر ایمان و عافیت کے ساتھ موت مل جائے. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ یہ ملک بھر سے مختلف پوسٹر بھی لے کر آئے، بہت سارا ایصال ثواب بھی انہوں نے ہمیں بھی لکھ کر بھی بھیجا ہے. اور خاص کر ایک بات جو یہ اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ کئی ایک نے ان کو دعاؤں کے لیے بھی کہا تھا کہ بھائی آپ کراچی جا رہے ہیں فیضان مدینہ میں دعا کرانا. تو یہ بھی کچھ ان کی عرض تھی، میں نے کہا پہنچا دوں. یہ بھی کان میں لپک کر جو کہہ رہے تھے نا، یہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر میں 4 صدقہ باکس ہیں. اللہ نے کہا امی کا الگ ہے تو فلاں کا الگ ہے، تو اس طرح مطلب یہ ہے. ماشاءاللہ جوش میں آگر یہ کہہ رہے تھے. کیا بات. حسن رضا نے 4 مدنی باکس آپ کے گھر میں. 3 4 یار کی بڑی گھریلو صدقہ باکس باہر والی ہے. گھریلو صدقہ باکس. جی جی ماشاءاللہ. مجھے بھی آج پتا چلا. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب انشاءاللہ دوسرے اسلامی بھائی بھی اس سے ترغیب لیں گے اور اپنے گھر میں امی کا الگ ہو تو آپی کا الگ ہو تو بھیا کا الگ ہو، تو سب کے الگ الگ جو بالغان ہیں ان کے، نابالغ کے نہیں، بالغان کے الگ الگ باکس ہوں. اور ان سب باکسوں میں نابالغ کے ہاتھوں سے ڈلوائیں تاکہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بنے اور سخاوت اس کے اندر پیدا ہو. ماشاءاللہ. کیا بات ہے حسن. حسن رضا بھی اپنے ہاتھ سے صدقہ باکس میں ڈالتے ہیں. کیا بات. امی وغیرہ ڈلواتی ہیں نا. ماشاءاللہ. ہاں امی دیتی ہیں تو اب ڈال دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ترکی میں 40 سیکنڈ تک زلزلہ آیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں بلڈنگیں گر گئی، شہادتیں بھی ہوئیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اور جب عبدالحبیب بھائی نے ترکی جانے کے لیے آپ سے مشورہ کیا تو آپ کے ذہن میں اس وقت کیا خیال تھا؟ آپ نے کیا سوچ کر عبدالحبیب بھائی کو اسی وقت جانے کا کہا؟ جواب ارشاد فرما دے اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. اللہ اللہ. اللہ پاک ترکیہ والوں پر، شام والوں پر، شام میں بھی زلزلہ اور تباہی مچی ہے لیکن ترکیہ میں زیادہ مچی ہے. آخری فگر 15,000 تک تو یاد پڑتا ہے مجھے، معلوم ہوا تھا کہ ادھر اموات ہوئی ہیں. تو اللہ پاک سب مسلمانوں کو غریق رحمت فرمائے، ان کے سوگ باروں کو صبر دے. ہم خالی باتیں کر سکتے ہیں. برف برس رہی ہے، آسمان سے برف برس رہی ہے، برفانی ہوائیں چل رہی ہیں، برف باری ہو رہی ہے، برف کی جمی ہوئی ہے، عمارتیں ڈھی پڑی ہیں، اندر بندے دبے پڑے ہیں. اب جو زندہ بچا وہ جو باہر کھلی فضا میں پڑا ہے اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس غریب پر کیا گزر رہی ہوگی. تو یہ بڑی ہے تو آزمائش. خیر، تو وہ حاجی عبدالحبیب نے مشورہ کیا تو میں نے کہا یار میرا بس چلے تو میں تم کو کندھے پہ بٹھا کے لے جاؤں،
یہ موقع ہے اپنے آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کا، بالکل جانا چاہیے۔ میں نے 100% ان کو مشورہ دیا تو یہ فوراً بولا ٹھیک ہے میں اب راتوں رات تیاری کرتا ہوں، تو یوں ماشاءاللہ وہ نکل گئے اور اپنا حصہ انہوں نے لیا۔ ہم سب کو جتنا ہو سکے، اب میں ذرا خود تو جا نہیں سکتا، جانے جیسا ہوں نہیں، تو اب جو جا سکتا ہے اس کو حوصلہ افزائی اور پیٹ تھپک کرا کے بڑھا دینا اپنا کام یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، عصر کی نماز کے بعد دینی اور دنیاوی سبق یاد کرنے سے سبق یاد نہیں ہوتا، کیا یہ درست بات ہے؟ عصر کے بعد ریسٹ کا ہوتا ہے، پڑھائی جو سارا دن پڑھائی کرتا ہے اس کے لیے، تو ہم یہ کہ سبق بالکل یاد نہیں ہوتا ایسا بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو زیادہ تجربہ ہوگا اس کا۔ ایسا تو نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس طرح کی تحریر کا کام عصر کے بعد عام طور پہ نہیں فرمایا کرتے تھے، ورنہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عصر کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے، تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت پڑھا کرتے تھے، ساتھ ساتھ چلتے چلتے ان سے عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلاف میں سے بڑی تعداد ہے جن کا تقریباً وقت پڑھتے پڑھتے ہی گزرتا تھا، عصر کے بعد کا کوئی ایسا ان کا معاملہ ہوا نہیں کرتا تھا۔ البتہ یہ وہی جو آپ نے فرمایا کہ ریسٹ کا وقت ہوتا ہے، ایک آرام کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض کا ہے اس طرح کہ وہ عصر کے بعد نہیں کرتے تھے اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی۔ ریسٹ سے مراد وہ سونا نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ وہ کام کا، جیسے عوام سے ملاقات، علماء جو ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، عصر کے بعد یہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض ان کا وقت وہی ہوتا ہے کہ عصر کے بعد ملاقات، عصر تا مغرب، تو جو تحریری کام اگر ہے یا مطالعہ کام ہے تو اس وقت موقوف، اور عوامی ڈیلنگ، پبلک ڈیلنگ، لیکن کچھ نہ کچھ کام، لیکن فالتو نہیں ہوتے۔ جو مصروف شخصیات، علمی شخصیات جو ہوتی ہیں، وہ ان کے پاس فارغ وقت ہوتا نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ ان کے کام لگے ہی ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر 40 دن تک لالٹین یا بلب جلایا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ مردے کی لاش کو کچھ جانور نکال کر لیتے ہیں یا اس کی قبر کے ساتھ چھیڑتے ہیں، تو اس لیے یہ لالٹین یا بتی جلائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مطلب بتی لالٹین کی روشنی جانور کو راستہ دکھا دے گی الٹا کہ ہاں یہاں قبر بنی ہوئی ہے، یہاں چلنا ہے اپنے کو۔ ہاں اگر واقعی سے خطرات ہیں تو بندے لالٹین لے کے بیٹھ جائیں، اور کیا، ڈنڈا بھی ہاتھ میں رکھ لیں، وہ جانور لینے آئے تو پھر تو یہ مطلب عوامی توہمات اس کو کہتے ہیں، وہم، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک حفاظت کرتا ہے۔ اصل تو وہ اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا ہم نے، اب یہ ہے اس کے اعمال ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو یہ بچے گا، ورنہ قبر میں سانپ بچھو اگر کسی کو عذاب کے آ گئے معاذ اللہ، تو اس پر لالٹین کیا کرے گی، کیا کرے گا، بلب، اور اس بلب کا اندر تو اجالا پہنچنے سے رہا، اندر کسی نے اگر لائن فٹ کر بھی دی، فٹنگ کر دی اور بتی جلا بھی دی، تب بھی وہ بلب قبر کا اندھیرا دور نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، چلو ہم لائٹ لگا دیں گے تو کب تک رہے گا، اور بلب کیسے پتا چلے گا فیوز ہو گیا ہے، جب فیوز ہو گیا تو، اور فوراً فیوز ہو گیا تو کیا کرو گے؟ تو یوں مطلب یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہ جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، یہ اس کو کام آئے گی، ایصال ثواب کیا جائے، وہ اس کو کام آئے گا۔
اس کے لیے خیر خیرات کی جائے، ایصال ثواب کی نیت سے کھانا کھلایا جائے، کپڑے پہنائے جائیں، کتابیں طلباء کرام کو دی جائیں، کسی طالب علم کا پورا خرچہ اٹھا کر درس نظامی تک اس کو پڑھایا جائے اور ایصال ثواب کی نیت کر لی جائے۔ اس طرح کے کار خیر کریں گے ہم تو اس کو فائدہ ہوگا میت کو، نہ کہ میری تیری لالٹین اور یہ بلبیا جو ہے یہ قبر میں کچھ کام آ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹے بچے کی قبر میں کے پاس دیکھا جاتا ہے کہ وہ لال مرچیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں نیولا وغیرہ یہ بعض اوقات جو گھستے ہیں تو وہ بچ جائیں، اس طرح کا کچھ بتاتے ہیں۔ کبھی دیکھا نہیں یار، ہم نے تو بچوں کی تدفین کی ہے نا، قبرستانوں میں بچے دفن کیے ہیں، دیکھے ہیں، گئے ہیں۔ کبھی لال مرچ میں نے آج تک میں بڈھا ہو گیا دیکھی نہیں ہے، خدا بہتر جانے کوئی رکھتا اور یہ اس کو اتنی تحقیق ہو کہ یہاں قریب میں نیولا ہے اور یہ بھی پتا ہو کہ لال مرچی دیکھ کر نیولا جو ہے نا الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا ہے، تو ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو علماء کے مشورے سے ترکیب بنا لے، ورنہ لال مرچیں کسی غریب کو ایصال ثواب کی نیت سے دے دے تو اس کے پیٹ میں جائیں گی تو ثواب ملے گا۔ یا کسی علاقے میں ایسا ہوتا ہو کہ وہاں نیولے پائے جاتے ہوں اور وہ قبروں میں چلے بھی جاتے ہوں اور لال مرچ سے وہ دور رہتے ہوں، تو ایسی صورت ہو تو پھر یہ کہ وہ لال مرچیں وہاں رکھتا ہے یا پسی ہوئی چھڑکتا ہے اور یہ ایک صحیح مقصد اس کا اگر یہ پاتا ہے تو ڈالتے ہیں۔ اب ویسے ہی ایک قیاس سے ساری دنیا میں مطلب لال مرچیں، کیونکہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، تو میں تو کئی قبرستان میں گیا ہوں نا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ اگر کہیں ہو تو ٹھیک ہے مرچیں رکھے۔ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا نا کہ یہ ہر جگہ نہیں ہے، لیکن بعض مقامات پر ایسا ہے کہ وہاں قبرستان میں یہ نیولے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر نرم قبر ہوتی ہے تو اس میں یہ سوراخ کر کے اندر چلے جاتے ہیں، بالخصوص جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے قبر کے اندر یہ، تو اس لیے وہ قریب بعضوں کا جھاڑی رکھ دیتے ہیں، یہ سرہانے سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سرہانہ ہوتا ہے یا پائنتی ہوتی ہے اس کی طرف سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، تو یہ جھاڑی وغیرہ کو رکھ دیتے ہیں کانٹے دار، جب تک وہ قبر تازہ ہوتی ہے کچھ ٹائم تک، اس وقت تک کے لیے، یا اس طرح لال مرچی چھڑک دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہر مقام پر نہیں ہے، بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہی ہوگی کہ وہاں پر نیولے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب وہ جیسی صورت ہوگی، میں نے پہلی بار یہ پہلے سنا ہوگا، بھول گیا ہوں میں، تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، تو یہ نا ہماری طرف نہیں ہوں گے، یہ کراچی شہر میں شاید کہیں نہیں ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک حل یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے پتھر ہوتے ہیں نا، سیمنٹ نہ صحیح کوئی سے بھی پتھر، اگر پتھر قبر پر چاروں طرف یعنی جس طرح یہ ڈھلان کی طرح اس کو پتھر اس طرح جڑ دیے جائیں تب بھی شاید یہ نیولا اندر گھس نہیں سکے گا۔ کوئی بھی ایسی ٹیکنیک کی جائے، جائز ٹیکنیک، کہ جس سے وہ بچے کی وہ لاش کو باہر کے جانور نہ کھا سکیں، اندر تو بچے کی لاش بھی گڑے گی، سلے گی، کیڑے کھائیں گے، اب اس کا تو کوئی ظاہر ہے ہمارے پاس حل ہی نہیں ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا آب حیات پینے کی وجہ سے زندہ ہیں؟ یہ اس طرح کی واقعات تو ہیں کہ اپنے حضرت سکندر ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ ان کو جب معلومات ہوئی تو آب حیات کا چشمہ تلاشنے کے لیے سفر اختیار کیا تھا اور ایک جگہ پر پہنچ گئے تھے، وہاں پر تو حضرت خضر علیہ السلام وہ آب حیات پینے میں
कामयाबी हासिल की इन्होंने, लेकिन सैयदना ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह ये इसको आब हयात ना पी सके। तो ये इस तरह की हिकायत तो हैं। अपने अजाइबुल कुरान में है, जो मुझे याद आ रहा है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल यह आया है कि औरत का क्या अपने मामू और चचा से पर्दा है? सोतेले और दूध के रिश्ते के और सगे चचा मामू से पर्दा नहीं है। सगे चचा मामू, दूध के रिश्ते के चचा मामू और सोतेले चचा मामू से औरत का पर्दा नहीं है। हर एक को अंकल बोलते हैं आजकल, इन अंकल से पर्दा है। जो वाकई चचा यानी कि सगे बाप का सगा भाई है, मुंह बोला नहीं, और या माँ का सगा भाई है, मुंह बोला नहीं, और खालाजाद मामूजाद वाला नहीं, हाँ सगा भाई, एक ही माँ का जैसे बेटा समझ लो, है ना। तो सगे चचा और सगे मामू से पर्दा नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रजब के रोजेदारों के लिए जन्नत में एक महल है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की सलाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाहुम्मा बारिक फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में भी देखो कैसा नूर जाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। या अल्लाह पाक, आज हमने इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये नियाज की है, या अल्लाह पाक कबूल फरमा, आमीन आमीन। मैं मदरसतुल मदीना रीगल चौक में शोभा हिफ्ज़ की तालिबा हूँ। प्यारे मीर सुन्नत ये इरशाद फरमा दीजिए, कुरान पाक पर पेन या पेंसिल से घेरे निशानात लगाना कैसा है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों के प्यारे प्यारे दिलरुबा अंदाज, मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और इनके माँ बाप के साथ इनको हज नसीब करे, मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए, और ये सआदत बार बार अता फरमाए। माशाअल्लाह, प्यारी प्यारी बच्ची मीज़ाब रहमत ने सवाल किया कि कुरान करीम पर पेंसिल या पेन से निशान लगा सकते हैं। यानी अगर अपना जाती नुस्खा है, यानी वो कुरान शरीफ जो छपा हुआ है वो अपनी अम्मी ने दिलाया, अबू ने दिलाया है, और पता है, इजाजत भी है, तो जरूरतन निशान लगा सकते हैं। वरना अगर ये मदरसे का है या किसी और का है या वक्फ का है, तो अब इस पर निशान नहीं लगा सकते। नहीं, अगर वक्फ का कुरान करीम है, जैसे लोग देते हैं पढ़ने के लिए, तो इसमें कारी साहब या बाजी इजाजत नहीं दे सकते निशान लगाने की। अगर ये इजाजत देंगे तभी इजाजत वैलिड नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी। तो इसमें निशान नहीं लगाने। हाँ, कोई मोर का पर रखते हैं, खूबसूरत होता है, ऐसी चीज, या कोई नाले पाक का नक्श है, मसलन कोई भी ऐसी चीज जो कागज का
पुर्जा है, वो जरूरतन उस सफ़े को रखने के लिए उसमें रखा जाए। डोरी वैसे होती है कुरान करीम, तो वो डोरी उस सफ़े को याद रखने के लिए वो रखी जा सकती है। सफ़ा मोड़ भी नहीं सकते, किसी और का वक्फ वगैरह का कुरान करीम है, सफ़ा मोड़ेंगे तो उसमें ये एक ऐप पैदा हो जाएगा, वो मुड़ मुड़ के एक निशान पड़ जाता है। ये भी नहीं करना है। अपना जाती है तो उसमें कर सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि हम मज़ारात की ज़ियारत के लिए गए थे, मोहल्ले में हमें किसी ने पैसे दिए कि दाता साहब के मज़ार पर लंगर कर देना। हमने वो लंगर बाबा फरीद के मज़ार पर कर दिया। क्या हमारा ऐसा करना दुरुस्त था? अब अगर दाता साहब के मज़ार की कैद लगाई थी, एक तो कहा कि हुजूर दाता हुजूर का लंगर कर देना, न्यास कर देना, तो ये तो हो सकता है इसमें गुंजाइश निकले। अब दाता हुजूर के मज़ार पर लंगर करना तो समझ में यही आता है कि वहीं किया जाएगा। पाकपतन शरीफ में अगर किया, मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? इसाले सवाब का मकसद तो पूरा हो रहा है कि दाता साहब को इसाले सवाब कहीं भी कर दिया, लेकिन उन्होंने कैद अगर लगाई है कि वहीं के फुकरा को या ज़ायरीन को खिलाया जाए। असल में वो जो मन्नत वगैरह होती है उसके अहकाम तो अलग होते हैं कि वो मज़ार के साथ के मखसूस मज़ार ही पर उसी पर करना हो, ये लाजिम नहीं होता। किसी और जगह के फ़ुकरा को खिला दिया तो भी जायज़ होगा, लेकिन यहाँ पे वो सूरत नहीं है। यहाँ तो उसने बाकायदा दिए ही इसलिए कि आप जाके उस दाता साहब के मज़ार पर खर्च करें, तो फिर तो वहीं खर्च करने थे। इनको इस बात की इजाज़त ही नहीं थी कि ये जो है वो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाके खर्च करते। कोई 11वीं के लिए देता तो 12वीं में इजाज़त नहीं थी, ख़ास 12वीं के लिए देता तो 11वीं में इजाज़त नहीं थी। तो जो समझ आ रहा है वो यही है कि ये इन्होंने गलत किया है और उस पर इनको तावान देना पड़ेगा उस शख्स को। किसी ने अगर आपसे कहा कि दाता हुजूर के मज़ार पर लंगर तकसीम कर देना और रकम दी और आपने कर दी पाकपतन शरीफ में लंगर, तो जो कुछ ये किया आपने गलत किया और जेब से ये सारा नुकसान जो है पेमेंट करना पड़ेगा और ये जिसने आपको पैसे दिए उनको लौटाना पड़ेगा। या उनको आप बता दें कि मैंने ये कर लिया, अगर वो बाकी रखता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तब तो ठीक है, वरना ये कि आपको मतलब जेब से पैसे देने होंगे। अब ये भी इससे फिर बात कर लें कि ये पैसे मैं आपको दे दूं, क्योंकि आपने इनके पैसे तो फना कर दिए ना, खत्म कर दिए, तो आप इनको मतलब यानी कि ये पैसे आप ले लो या आप बोलो तो अब मैं दाता हुजूर की बारगाह में हाजिरी है मेरी तो वहां खर्च कर दूंगा। तो इस तरह की कोई यानी कि तरकीब कर ली जाए। अब जैसे किसी ने कहा मदीना शरीफ के कबूतरों को दाने डाल देना, तो आप बोलोगे बगदाद शरीफ के कबूतरों को खिला दूं या अजमेर शरीफ के कबूतरों को खिला दूं या मक्का पाक के कबूतरों को खिला दूं, तो ये ना करें, बल्कि मदीने पाक के कबूतर की अगर उन्होंने सराहत की है साफ अल्फाज में क्या मदीने के कबूतरों को, तो मदीने के कबूतरों को ही खिलाने होंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा सवाल है कि सैयदजादे का इंतकाल हो गया है और उनकी बीवी सैयदजादी नहीं है, तो क्या उनको ज़कात दे सकते हैं? अगर ज़ौजा सैयदा नहीं है किसी की और सिर्फ उसके निकाह में सैयद के आने से अगर वो ज़कात की हकदार बनती है, तो इसकी जिंदा थे जब सैयद साहब तब भी दे सकते थे, अगर वो हकदार थी तो। गैर सैयदा तो इंतकाल के बाद भी दे सकते हैं, हकदार होना जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि मदनी चैनल को बरकत की नीयत से म्यूट करके लगाना घर पर क्या दुरुस्त है? इसका शरई हुक्म क्या रहेगा? ये कहीं बिजली का इसराफ तो नहीं होगा इसमें, या नीयत की वजह से मसला बदल जाएगा?
नहीं, हुसूल बरकत के लिए मदनी चैनल पर हर वक्त ऐसी सूरत तो होती नहीं है कि भाई कुरान की आयतें दिखाई जा रही हैं, आप ये तस्वुर कर लेंगे मैंने फ्रेम लगाई हुई है, ऐसा तो नहीं है ना। बंदे दिखाए जाते हैं और बंदे का बाबरकत होना, इसकी तस्वीर का या इसके अक्स का, ये तो जरूरी नहीं है। तो अगर म्यूट करके इसलिए लगाया कि कोई मतलब नहीं कि इसको देख देख कर भी कुछ सीख रहा है, जैसे कि वो इशारे की जबानों में चल रहा होता है, तो वो जो डेफ हैं वो सुन तो नहीं सकते, तो वो इसको सीख रहे हैं। तो यहाँ एक जरूरत है, सिर्फ बरकत के लिए म्यूट करके लगा देना, ये तो समझ में आ नहीं रहा। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? वही जो आपने इरशाद फरमाया है वो दुरुस्त है। इस तरह तो हो सकता है वाकई ज़िया के अंदर आ जाए बगैर किसी वजह के लगाना हो। है ना, जैसे आलिम की जियारत की फजीलत है, तो आलिम की जियारत की फजीलत बराह रास्त देने के, लाइव आलिम को देखेंगे ना, लाइव भी स्क्रीन पर ही आता है आजकल, तो यानी का बगैर स्क्रीन के, है ना, समझो कि रूबरू आलिम की जियारत करेंगे, वो भी ताजीम की नीयत से करेंगे, तो ये इबादत है। स्क्रीन पर अगर आलिम की जियारत करेंगे, इन आलिम को देखेंगे, तो इसका वो सवाब नहीं है जो हदीस पाक में सवाब बयान किया गया आलिम की जियारत का, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो स्क्रीन स्क्रीन है। तो इसलिए म्यूट करके इसको मदनी चैनल को अपने बरकत के लिए लगाए रखना, जारी रखना या इसको ऑन रखना, ये दुरुस्त नहीं है। हो सकता है इसराफ में आ जाए। सैयदी अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि एक सवाल है, अफजाल भाई हैं, कह रहे हैं कि क्या रोजाना सदका करना चाहिए या हफ्तावार करने पर ज्यादा सवाब मिलेगा? हफ्तावार की कैद तो नहीं है, रोजाना करे, हर वक्त करे सदका आदमी, जिससे बन पड़ेगा। अभी जहन में आया तो अभी निकाल दे, क्योंकि वो निकालना जो है ना माल, ये निकलती है साथ में, तो ये थोड़ा दुश्वार होता है। तो हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह का वाकया आला हज़रत ने नकल किया है कि आपको मतलब ये नहीं कि आप लिबास पहनकर वॉशरूम तशरीफ ले गए और फौरन बाहर आए, खादिम को आवाज दी, हाथ में जुब्बा जो पहना हुआ था वो हाथ में था, बोला ये फुला को दे आइए। तो फिर जब आप फारिग होकर निकले तो खादिम ने हंस किया कि हुजूर वो ऐसी जल्दी भी क्या थी, आप गए और पलट के आ गए। बोला मेरे दिल में अंदर गया ना तो एकदम आया कि ये जुब्बा जो ये फुला को मैं सवाब के लिए दे दूं राय खुदा में। तो इसलिए मैं नेक काम था, मैंने कहा जल्दी की, कैसा ना हो कि मेरा दिल कहीं बदल जाए, बाद में नीयत तब्दील हो जाए कि अब नहीं देते बाद में देखेंगे, हो जाता है ऐसा। तो इसलिए वो राय खुदा में देना तो जल्दी जल्दी चाहिए। अब जुम्मे को 70 नेकियां हैं, एक नेकी की 70 नेकी, तो अब आपको यार आज जुमेरात है, आज नहीं देते, कल जुम्मे को देंगे, 70 नेकियां हैं। तो इसके लिए 70 नेकियों की खातिर जुमेरात की नेकी को रोकना ये भी नहीं मुनासिब, क्योंकि वो जिंदगी का वैसे भी क्या भरोसा है। और अगर ज़कात फर्ज है तो फर्ज हो चुकी, अब तो एक सेकंड भी बिला वजह ताखीर नहीं कर सकते। ना कि लोग जो रमजान का इंतजार करते हैं कि रमजान में ज़कात, ये आम तौर पे लोग रमजान में ज़कात निकालते हैं, तो ऐसा नहीं है। चाहे रजब की पहली तारीख को, चाहे मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख को ज़कात फर्ज हुई और इस पे शराइत पाए गए और साल इस पर गुजरा, तो अब मुहर्रम की पहली तारीख को साहिब निसाब हुआ था, नहीं इतना माल, इतनी रकम, माल तिजारत वगैरह, इसके बाद था कि जो निसाब में है। अब इस पर साल पूरा गुजरा और ज़कात के शराइत मौजूद है ना, तो इस सूरत में मुहर्रम शरीफ की समझो कि सुबह 10 बजे ये साहिब निसाब हुआ था, तो अब मुहर्रम जो एक साल गुजरा, पहली मुहर्रम को सुबह 10 बजे ये ज़कात इस पर फर्ज हुई। जितने घंटे जितने मिनट
पर ये साहिब निसाब हुआ था, पूरा साल गुजर कर उसी घंटे उसी मिनट पर इस पर ज़कात फर्ज होती है, ये जहन में रखिएगा। तो लोग रमजान को निकालते हैं, तो रमजान को निकालने में हर्ज नहीं है, अच्छा है, एडवांस में निकाल दें। मुहर्रम शरीफ का इंतजार नहीं करते, बहुत देर है अभी, रमजान शरीफ आ रहा है, ज़कात निकाल दें एडवांस में। फिर जब मुहर्रम शरीफ आएगा तो अब अगर वो कुछ फिर भी ज़कात के शराइत बाकी हैं, पाए गए माल बाकी है, और तो अब ये कि जो बकिया फिर भी मुहर्रम शरीफ की जब वो तारीख आएगी तो फर्ज तो रहेगी, तो वो भी दे दें। वो भी रमजान शरीफ से बाद भी एडवांस में दे सकते हैं, रमजान शरीफ से पहले भी एडवांस में दे सकते हैं, ज़कात एडवांस में दी जाती है, दी जा सकती है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद रमजान में फर्ज होती है, तो सिर्फ रमजान में ज़कात फर्ज नहीं होती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर, आप अपने नाम के साथ ज़ियाई क्यों लगाते हैं? ये आप बता दीजिए, सवाल भी आपका जवाब भी आपका। तो सवाल तो आपसे किया रहा हूं, सुना तो आपकी जबान से मैंने, तो अपनी मुबारक जबान से जवाब भी दे दे। मैं इजाजत देता हूं आपको, दे दीजिए। यार बात सवालात ऐसे होते हैं कि खाली सवाल भरा सवाल होते हैं जिनका कोई सर पैर होता नहीं है, समझे यार। ये किसको नहीं पता होगा कि ज़ियाई क्यों कहते हैं, कादरी क्यों कहते हैं। अब ऐसा कोई अगर किसी जंगल से या पहाड़ की चोटी से उतर कर आया है तो मदनी चैनल भी उसको देखना नसीब हो, ये भी एक गौर करने की बात है। हुजूर एसएमएस के जरिए सवाल पेश कुतुब मदीना शेखुल फजीलत शेखुल अरब वल अजम सैयदी कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से कि मैंने इनके हाथ पर बैत की, मेरे वो आका है, नेमत है, तो इसलिए वो ज़ियाई हूं मैं। लेकिन आमतौर पर मैं ज़ियाई लिखता नहीं हूं, ये मदनी चैनल या सोशल मीडिया वालों की मर्जी है। मैं मशहूर जो हूं ना, इलियास कादरी से मशहूर हूं। अब अगर कोई कहेगा इलियास ज़ियाई, तो ये लोग ये समझेंगे कि ये कोई होगा, समझे। ये इसलिए कि जिस नाम से जिसको एक मशहूर हो ना, अनसब यही होता है कि उसी नाम से उसको पुकारा जाए। ये एक मुनासिब यही है। जैसे हम इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत बोलते हैं, तो बाद वक्त कोई मुझे भी आला हजरत बोल देते हैं, तो मैं मुस्कुराता हूँ कि अभी बेचारे को पता ही नहीं है, वरना आला हजरत हमारे यहाँ की फिक्स है। आला हजरत के माने के बड़े हजरत, तब कोई उम्र के हिसाब से कोई बुजुर्ग है या बूढ़ा है उसको कोई आला हजरत बोलता है, शरन तो कोई पकड़ नहीं है उसकी, लेकिन यूं मजा नहीं आता कि यार एक ही आला हजरत जमे। मेरे बेटे हाजी उबैद रजा का नाम था अहमद रजा, मैंने नाम तो नहीं रखा था अहमद, पुकारने के लिए रखा था रजा। फिर जब ये उठान लेनी शुरू की ना इन्होंने, तो मेरे जहन में ये आता था कि अब एक अहमद रजा तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, इनकी शोहरत है। अब हो सकता है कि दावत इस्लामी की बरकत से ये भी मशहूर हो जाए, तो फिर लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कौन से अहमद रजा, इलियास कादरी के बेटे अहमद रजा या वो बरेली शरीफ वाले अहमद रजा। तो मैंने कहा यार ये यहाँ दुई नहीं होनी चाहिए, एक ही सही अहमद रजा। तो मैंने वो अहमद नाम तो बाकी रखा, लेकिन वो उबैद रजा कर दिया। ने रजा का बहुत छोटा सा गुलाम, अब्द की तस्गीर है उबैद, तो यूं मतलब मैंने उबैद रजा कि हम लोग गुलाम और छोटे गुलाम है आला हज़रत के, बड़े भी नहीं है। तो यूं ये उबैद रजा मशहूर हुए, ये मशहूर किया है ताकि वो अहमद रजा वाले जो मुगालता पैदा ना हो लोगों को। ये मेरी ये नीयत वो बहुत को पता होगी, पहले मैंने ये बयान किया भी होगा इसका।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये सोशल मीडिया वगैरह को ये मैंने दरखास्त बरसों के डाली हुई है, बताया हुआ है कि ये, लेकिन अब वो ठीक है, मतलब जियाई हूँ तो सही, रज़वी भी हूँ, लेकिन बस ये कि मेरी जो अब मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना तजुर्बा है, अब वो ज़रा दुनिया देखी वाली है तो यूँ तजुर्बा हो जाता आदमी को। अब ये हर एक को या नौजवानों को इतना तजुर्बा होता नहीं तो यार बूढ़ा हो गया ये बोलता है सही है जियाई है ना यार डाल दो। अब ये जियाई लिखें वो रज़वी लिखें, ये रज़वी और जियाई को ढूंढते रहेंगे और कादरी बेचारा बैठा रह जाएगा। बाद लोग मुझे इलियास अत्तारी बोलते हैं, इनकी मर्जी है, इलियास कादरी अत्तारी, अब मर्जी है सारे का, मैं अत्तारी तो हूं ही नहीं ना, मैं अत्तार हूं तो अत्तारी कैसे हो जाऊंगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जिया पीरो मुर्शिद मेरे रहनुमा है, जिया पीरो मुर्शिद मेरे रहनुमा है, सुरूरे दिलो जा मेरे दिलरुबा है, सुरूरे दिलो जा मेरे दिलरुबा है, जिया पीरो मुर्शिद मेरे रहनुमा है। पाको हिंद के मुताद्दिद देहातों के रहने वाले लोग पुराने और सूखे दरख्तों के करीब जाने से इज्तिनाब बरतते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इन दरख्तों पर जिनों और भूतों का साया होता है, और बहुत से लोग इन दरख्तों के साये में भी नहीं बैठते क्योंकि ये समझते हैं कि कहीं किसी चुड़ैल या जिन का साया इन पे ना पड़ जाए। और पाकिस्तान में बेरी का दरख्त जिन्नात के हवाले से बहुत मशहूर है, और लोगों का ये कहना है कि रात के वक्त तो बेरी के दरख्त के करीब हरगिज नहीं जाना चाहिए, वरना जिन या चुड़ैल चिमड़ जाएगी। ये दरख्तों और जिन्नात का आपस में क्या रिलेशन है, और साथ साथ ये भी बताइए कि ये जिन और भूत में क्या फर्क है, और ये जिन्नी और चुड़ैल में क्या फर्क है। प्लीज शेख बताइए, क्या है हकीकत, क्या अफसाना। अल्लाह अकबर। अब ये कि अवाम तो अवाम है, वो जिधर चली उधर सीधी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ दरख्तों से ताल्लुक नहीं है, जिन्नात घरों की छतों पर भी रहते हैं, गोश्त फरोशों के कपड़ों से लिपटे रहते हैं, ये किताबों में जो लिखा वो अर्ज कर रहा हूँ, और लटकते रहते हैं गोश्त फरोश के कपड़ों से। तो हर जिन वो नहीं होता, हमला नहीं करता, हर जिन तकलीफ नहीं देता, हर जिन इतना पावरफुल नहीं होता। अब कपड़ों से लटकने वाला होगा कितना सा, इतने इतने होंगे, समझे, तो क्या तकलीफ देंगे। तो हर जिन शरारती नहीं होता जो तकलीफ दे। तो इस तरह मतलब ये कि ये लोगों के घरों में रहते हैं, दस्तरखानों पे आके खाने में शरीक हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, मुसलमानों के घरों में भी रहते हैं, समझे। और पाक जिन भी होते हैं, पाक माने मुसलमान, नापाक माने गैर मुस्लिम, नापाक जिन बोलते हैं ना, तो ये गैर मुस्लिम। तो ये मतलब सिर्फ दरख्तों पे भी रहते होंगे, दरख्तों ही पर या पुराने दरख्तों से इसका कोई ताल्लुक, ये लोगों के तवहुमात यानी वहमात है, वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि सुना तो यही है, यानी कहा गया है कि बेरी का दरख्त तो वहां लगता है कि जहां मतलब कोई बुजुर्ग या वलीउल्लाह की निस्बत हो उस जगह को, तो वहां बेरी का दरख्त उगता है। अब बेरी के पत्ते अभी आ रही है शबे बारात, देखो फैजान मदीना अखबार बिकेंगे, 7 पत्ते बेरी के पानी में उबाल लो, है ना, और इसको फिर दूसरा पानी मिलाकर इससे गुस्ल कर दो तो सारा साल जादू से हिफाजत। अच्छा, बेरी के पत्तों से मैयत नहलाई जाती है। तो ये जिन्नात वाले और खबीसों वाले और चुड़ैले वाले पत्तों का काम क्या है यार, ये तो बरकतों वाले पत्ते हैं, और बेरी का दरख्त तो बरकतों वाला है।
یہ لوگوں کی بس طرح طرح کی باتیں. یہ درخت کا تو اتنا مشہور، ہم نے بہت پہلے ایک قصہ سنا تھا، مجھے لگتا تو من گھڑت ہے، لیکن یہ کہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا شاید دل مضبوط ہونا چاہیے کہ ایسا کچھ ہے نہیں. درختوں سے اس کا ڈائریکٹ کوئی کنیکشن یا ہر درخت کے ساتھ یا درخت ہی کے ساتھ جن کا کوئی کانسیپٹ یعنی کنیکشن ہے، کانٹیکٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ لڑکوں میں آپس میں شرط لگی قبرستان کے قریب کہ اس قبرستان میں جو وہ درخت ادھر جو ہے نا اس میں جن رہتا ہے کوئی مرد کا بچہ، وہاں جا کر کیل گاڑ کے آ جائے تو میں اتنے دوں گا اتنے دوں گا. مطلب اس طرح کسی نے جوش دلایا تو ایک جو تھا نا وہ تھوڑا آ گیا، مطلب باتوں میں جا کے کیل گاڑوں گا، کچھ نہیں ہوتا. تو وہ پہنچا گیا اور رات کے وقت پہنچا اور یہ بہت دور رہے تو درخت میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ جا بیٹا جا. تو وہ تھوڑی اور کیل لے کر ڈرتا جھجکتا سہما وہاں پہنچا. پہلے سے خوف تو تھا کہ جی دیا رہتا ہے، اب جوش میں اگر سے کہہ تو دیا تھا، اب وہ سمجھے بول کے واپس لینا مشکل ہوتا ہے. تو یہ گیا اس درخت کے پیچھے نیچے اور بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اس نے وہ ڈرتے ڈرتے کیل ٹھونکی. کیل تو ٹھونک دی اس نے. اچھا اب یہ کہ وہ رات ساری نکل گئی، وہ یہ باہر آیا نہیں. تو دوستوں کو تو رات میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آیا نہیں ہو نہ اس کو جن نے پکڑ لیا ہے. تو اب یہ کہ یہ دوست جب دن ہو گیا تو آئے اس کو ڈھونڈتے ہوئے تو یہ تو مرا پڑا تھا. اچھا قصہ کیا ہوا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس نے جو کیل گاڑی نا تو وہ گھبراہٹ میں اپنی قمیض پر کیل گاڑ دی تھی اس نے. اب زمین میں وہ کیل اور قمیض زمین سے چپٹ گئی، اس کی قمیض اٹھنے گیا تو یہ جھٹکا آیا اس کو ایک دم خوف بیٹا کہ جن نے پکڑ لیا ہے. تو اس کا دل پھٹ گیا اور وہیں وہ مر گیا. تو جن نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، وہ اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے، نفسیاتی اثر کی وجہ سے وہ مارا گیا. تو یہ مطلب ہوتا ہے، مطلب کہ ایسا کچھ ہے نہیں. یہ بابا جی لوگ ہو سکتا بتاتے ہوں کہ پیپل کا پرانا درخت تو نیم کا پرانا درخت تو وہ ویرانے کا درخت، جنگل کا درخت، اس میں جن رہتا ہے، اس پہ ان کا خاندان آباد ہے تو فلاں یہ ہو سکتا ڈراتے ہوں. ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں. مسجدوں میں بھی درخت ہوتے ہیں، پودے، گھروں میں بھی اپنا تو شجر کاری مہم ہے اپنی. کتنے جن آتا ہے ہمارے درختوں پر، ہماری شجر کاری میں لاکھوں لاکھ شجر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے لگا دیا. FGRF نے کتنے جن پکڑے بھائی، یا کتنے جنوں نے ہمارے درختوں پر آ کر لوگوں کو پکڑا. بلکہ ان کی برکت سے ہو سکتا ہے جن بھاگ جاتے ہوں کہ بھئی یہ نیک لوگ لگا رہے ہیں، نیک لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے، راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے، اس کی برکت سے تو بلائیں دور ہوتی ہیں نہ کہ آ کر لپٹتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ بھی پہلے جب میں، اب تو عوام میں جانا کم ہوتا ہے، اعتکاف کی دعوت دیتے تھے نا تو اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کچھ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا مسجد میں بیٹھے بیٹھے. تو میں وہ سمجھاتا تھا کہ یہ جو اتنے روڈوں پہ پاگل پھر رہے ہوتے ہیں یہ سب نے اعتکاف کیا ہوتا ہے یہ اعتکاف کرے گا تو ہی کچھ ہو جائے گا. یعنی شیطان بھی ہے نا وہ ایسی آٹیاں مارتا ہے اور بندہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی آٹیوں میں آ جاتا ہے. تو اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اہل بیت سے، اولیاء کرام سے اپنی عقیدت کا رشتہ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری بلائیں خود ہی بھاگ جائیں گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا جن، بھوت، جنی اور چڑیل میں کیا فرق ہے؟ تو یہ سب ایک ہی چیز ہے، یوں سمجھ لو، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن کچھ فرق بھی ہے. جن جو ہے نا یہ عربی لفظ ہے، یہ غائب مخلوق یہ نظر نہیں آتے. اچھا بھوت کے لیے مختلف اس کی باتیں ہیں کہ شرارتی جن جو ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، اس کو بھی بولتے ہیں. اور حدیث پاک مسلم شریف کی اس میں کہا گیا کہ ولا غول، یعنی کہ غول کوئی چیز نہیں ہے. اچھا غول کے لفظی معنی بھوت بنتے ہیں،
अच्छा, अब मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है, और भी मैंने मतलब इसका मेरी मालूमात में कि वो एक तबका है गैर मुस्लिमों का, उनके नजदीक ये है कि जो गुनाहगार बंदा जो होता है तो वो जब मरता है तो उसकी जो रूह, उसका आत्मा बोलते हैं ये लोग, आत्मा अवगते जाए छे, उसकी रूह जो है ये गलत राह पर निकल जाती है और वो भूत बन जाती है और लोगों को सताती है। ये गैर मुस्लिमों का कॉन्सेप्ट है और हो सकता है कहीं कहीं मुसलमानों में भी इल्म की कमी की वजह से पाया जाता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मुसलमान की रूह ऐश में होती है, वो किसी को तंग करती नहीं है। गैर मुस्लिम की रूह जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, वो तो जिस्म और रूह दोनों पर अजाब होता है। ये आजादी से घूम फिर नहीं सकती, तो जब आजादी से घूम फिर नहीं सकते तो भूत बनकर किसी को सताएगी क्यों? तो यूं मतलब भूत जो इन मानो कर, तो मतलब ये क्या है, वो जिन भूत प्रेत प्रीत भी बोलते हैं, लेकिन प्रीत ये हिंदी लफ्ज में वो मोहब्बत को बोलते हैं ना, प्रीत न जाने रीत, यानी मोहब्बत जो है ना वो रीत रवाज रस्म रवाज नहीं देखती। तो ये परीत लफ्ज है, भूत परीत एक ही लफ्ज है। आसेब, रात, चुड़ैल, तो जो जिन्नी शरारती होती है, तंग करती है, इसको चुड़ैल बोलते हैं। चुड़ैल कोई अलग से चीज नहीं है। और एक नाम रखा है खबीस, ये खबीस के बारे में बोलते हैं गर्दन कटा हुआ होता है, सर कटा। तो हो सकता है कोई ऐसे भी जिन, ये शरारतें जिनकी कि कटा हुआ सर नजर आएगा, बंदा जा रहा है सर नहीं है तो लोग डर जाएंगे, तो इसका काम डरा कर लुत्फानंदोज होना। तो ये कर्तव्य कभी कभी दिखा देते हैं शोभदा। तो ये लोगों ने नाम रखे हुए। तो एक्चुअली जो वजूद है जिन का वजूद है, कुरान करीम में सूरह जिन मौजूद है। जिन का इनकार कुफ्र है, जो कुरान शरीफ से इसका वजूद साबित है कि जिन मखलूक है। बाकी इसके नाम बहुत सारे हैं। असरात बोलते हैं इसको, भाई असरात हैं, और ऊपर ही हवा लग गई, ऊपर ही हवा है। तो कई नाम इसके जिन के लोगों ने रखे हुए हैं, असल नाम इसका जिन है। और वो चुड़ैल भी वो जिन्नी, जिन की मतलब मोन्नस ने लेडी जिन। ये चुड़ैल जो सत्ता है, वो जो नहीं सताती, मुसलमान है, शरीफन है, तो वो चुड़ैल नहीं है। अच्छा, बाद औरतें बहुत खतरनाक होती हैं, तो इनको भी लोग चुड़ैल बोलते हैं कि चुड़ैल। घरों में लड़ाइयां होती है, बहू आई और इत्तेफाक से बेचारी आई और थोड़े दिन में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कसूर बहू का हो या ना हो, मगर कहा जब से ये चुड़ैल घर में आई है, घर का अमन पारा हो गया। ये तोहमत है उस पर, और उसकी दिल आजारी की ही सूरत है इसमें कि दिल दुखेगा। ज़ाहिर है किसी को चुड़ैल बोलेगा तो ये तो गाली है, एक तरह की गाली है ना। किसी को चुड़ैल बोलो तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा, किसी को भूत बोलो तब भी अच्छा नहीं लगेगा, शैतान बोलो तो भी अच्छा नहीं लगेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि अक्सर सर्दियों में चमड़े के मौज़ों पर मसे का रुझान पाया जाता है। बाज़ औक़ात इन पर कुछ ज़्यादा तेरी पहुंच जाती है और मस्जिद में हाज़िरी के मौके पर सफ़ वगैरह पर लगने का खतरा होता है। तो क्या हम इन पर मसा करने के बाद कपड़े वगैरह से पहुंच सकते हैं? जी हाँ, मौजों को पहुंच सकते हैं। अब तरी लग गई, मसा हो गया, वजू कर लिया, हाथ पांव धुल गए, अब पहुंच लिया, तो इससे वजू थोड़ी टूट जाएगा। तो इस तरह वो मौजे पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हाँ, ये अलग बात है कि आज़ा वुज़ू पर जो पार्ट, बॉडी के पार्ट जो धोए, हाथ मुंह वगैरह, तो इन पर तरी कुछ बाकी रखना चाहिए। तो ये क़यामत के दिन नेकियों के पलड़े में रखी जाएगी, यानी ये सवाब का काम है, मुस्तहब है। तो ये
आज़ा वजू की तरीका ये तो है। अब वो मोजे के बारे में कोई सराहत नहीं पड़ी कि इसकी तरी भी बाकी रखना ये कोई सवाब का काम है या नहीं। ताम ये कि अगर हाथ मुंह भी अच्छी तरह किसी ने पोंछ लिया तो फिर गुनाह नहीं है, तो यूं मोजे भी साफ कर लिए तो कोई गुनाह नहीं। और मस्जिद में अगर तरी आ रही है तो उसको साफ करना होगा, वरना वो दरियों पर फर्श पर धब्बे पड़ेंगे, फिर तो जरूरी है, फिर मुस्ताहब नहीं है इसको अगर है भी तो। जैसे कि अगर पानी के कतरे टपक रहे मस्जिद में तब तो इसको इतना तो साफ करना पड़ेगा ना कि इसके कतरे ना टपके, मसा क्या धब्बे भी ना पड़े मस्जिद के फर्श वगैरह पर। मसा करना है मौजू के ऊपर, मौजू पर मसा करना है, ना कि उसको धोना है कि उसके कतरे जो है वो मस्जिद के अंदर गिर रहे हों। असल वो यूं हो सकता है, यहाँ ये बात भी सही है आपकी। मसा कहते हैं जहाँ मसा करना मकसद वो पानी की तरी पहुंचे, ये ना समझो कि भीगे वो, ये भीगना भी पूरा ऐसा नहीं है कि लुढ़कता हो पानी, अब तरी पहुंच जाए तो ये मसा तो हो गया। अब ये कि वुजू जैसे करेंगे तो मुंह धोएंगे हाथ धोएंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो मोजों पर गिरेगा तो सही पानी। अब करेंगे मसा तो इसमें ये शायद ये हो सकता है कि वो गीले हो गए हों, वुजू खाने पर बैठेंगे तो पानी तो होता है ना वहाँ मस्जिद के वुजू खाने में, अगर बैठा और पाँव नहीं धोना चाहता, मोजे उसने शराइत के मुताबिक पहने हुए हैं, तो ये मोजे के भी शराइत इसके हर मोजे पे नहीं होता, फिर किस तरह होता है उसका अपना तरीका है, फिर कब तक ये बाकी रहता है मसा, ये सब इसके फिर अलग से मसाइल। ये पूरा बाब बहार शरीयत में, बहार शरीयत के जिल्द पहली और हिस्सा दूसरा गालिबन जिसमें वुजू का बाब है ये, उसी में मसे का बाब। है खासाए खासाने रसूल वक़्ते दुआ है। इस वक्त हम रात के तकरीबन 7 बज रहे हैं और हम अदना से हताई जा रहे हैं, वक़्ते दुआ है। लेकिन इतना लंबा ट्रैफिक जाम है, आप देख सकते हैं किलोमीटर्स लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है और एम्बुलेंसेज हैं और आप देख सकते हैं कि आगे भी तकरीबन मेरे ख्याल से कि आप ये देखें कि 8, 10, 12 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। एक ही जगह हमारी गाड़ी खड़ी है, यकीनन आगे रोड्स भी बंद हैं, इमदादी सामान जा रहा है और ये पूरा इलाका आपको अंधेरे में डूबा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये लाइट बंद कर दी गई है, वो आपको आग जलती भी नजर आ रही है और आप समझ सकते हैं कि पूरा डिजास्टर है। खासाए खासाने रसूल वक़्ते दुआ है, खासाए खासाने रसूल वक़्ते दुआ है। मुझे तेरी आके तेरी अजब वक्त पड़ा है, पड़ा है। पहले तो आप तबाही का मंजर देखें कि किस तरह घर के घर तबाह हुए हैं। बताया जाता है कि हताई में शायद कोई इमारत भी सही सलामत नहीं है। कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त रोड पर है, रात 2 बज रहे हैं, इमदादी काम जारी है, इस वक्त भी ट्रैफिक है रोडों पर। हम तो तुर्किया के एक शहर हताई में मौजूद है और बताया जाता है ऐसे 10 सिटीज हैं जो इस तरह कोलैप्स हुए हैं। आप सोचें कि ये पूरा मकान हंसता बसता मकान था, घर का सामान नजर आ रहा है, आज ये खंडर बन चुका है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, इस तरह की नागहानी आफतों से बचाए। अब इस घर का आप हाल देखें, ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया है, गाड़ियां अंदर फंस गई हैं, कितना सामान होगा, करोड़ों अरबों रुपए का लोगों का सामान, खरबों रुपए का, बल्कि मैं कहूँ कि ये लॉस है। मुझे खुदाया मुआफ कर दे। 40 सेकंड पहले जो घर वाला था, 40 सेकंड पहले जो माल वाला था, 40 सेकंड पहले जो सेहतमंद था, 40 सेकंड पहले जो जिंदा था, कई घर वाले इन 40 सेकंड के बाद बेघर हो गए। कई लोग दुनिया से चले गए विद इन 40 सेकंड्स। कई लोग जख्मी हो गए, आज अस्पतालों में पड़े हैं। और कई लोग जो मालदार थे, ज़कात अदा करते होंगे, उनमें से लाखों लोग इस वक्त ज़कात लेने वाले बन गए। ये है 40 सेकंड। हम इतराते हैं कि मेरे पास इतना माल है,
میرے پاس اتنے گھر ہیں، میری اتنی گاڑیاں ہیں، مجھے اتنا مال چاہیے، مجھے دنیا میں اور ترقی کرنی ہے، ہم اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس کا غضب ہوا، وہ ناراض ہو گیا، اور اگر ایسی کوئی آفت آئی تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہمارے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ دعوت اسلامی کا اس بار آپ نے اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشنز میں، اپنے صدقات میں ساتھ دینا ہے، اور اس اجازت کے ساتھ دینا ہے کہ دعوت اسلامی چاہے دینی کاموں میں استعمال کرے، فلاحی کاموں میں استعمال کرے، اصلاحی کاموں میں، روحانی، یہ سارے کاموں کی اجازت ہو، تاکہ دعوت اسلامی کو جب موقع جہاں ملے وہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا کام کرے۔ الحمدللہ عز و جل امدادی کام شب و روز جاری ہے۔ کل بھی ہم ترکی میں رابطے میں تھے، اور وہاں اب شام میں بھی الحمدللہ سامان خرید کر تقسیم کاری شروع ہو چکی ہے۔ سیریا کا جو ایریا ہے وہ بارڈر ایریا جو ترکی اور سیریا کے درمیان ہے، اور کیمپ وہاں پر لگے ہوئے ہیں، لاکھوں شامی مہاجرین وہاں پر ہیں، وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کی طرف سے امدادی کام شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر